तो अगर अपनी डीसी यूनिवर्स की इन मूवीज को देखा है तो इन्हें भूल जाओ, क्योंकि आफ्टर मल्टीपल कैंसल्स, कास्टिंग एंड फाइनली रीबूटिंग, डीसी is actually on a good start. Right from Suicide Squad to Peacemaker to Creature Commandos to Superman, DC's graph for a successful run is actually good. But all thanks to James Gunn. अब इससे मेरा ये कहना नहीं था कि डीसी के पिछले मूवीज अच्छी नहीं थे, they were good, but this is better. Comic accurate hopeful human Superman, John Cena's Peacemaker with Creature Commandos and the Suicide Squad. कहना गलत नहीं होगा कि DC is the new Marvel. जहाँ I personally don't believe in comparison, but here I can't stop myself but comparing DC to today's Marvel. Because Marvel is now struggling for introducing new characters like Miss Marvel, She-Hulk, Ironheart, Thunderbolts and Fantastic Four. जहाँ Thunderbolts और Fantastic Four मुझे बढ़िया लगे, पर अकॉर्डिंग टू माई नॉन सुपर हीरो फैन फ्रेंड उसे ठीक ही लगे। और वही उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डीसी की नई मूवीज इन कंपैरिजन अच्छे लगे। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ह्यूज एक्शन जॉनर फैन, ही ट्रूली एंजॉयड द सुपरमैन मूवी और लगे हाथों उसने जेम्स गन की सारी मूवीज देख ली है, राइट फ्रॉम सुपर टू गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टू ब्राइटबर्न टू नाउ, एंड ही एंजॉयड हिज एवरी सिंगल मूवी बिकॉज ऑफ जेम्स गन। हाँ, थोड़ा मसाला लगाया है क्योंकि वो दोस्त और कोई नहीं, मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो इन चीजों में कोई रुचि दिखाए। अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब, but you can't ignore the fact that DC is in safe hands of James Gunn. So after watching this every single movie, I have come up with 3 big reasons for why we actually root for James Gunn movies. और प्लीज आप भले ही इन 3 पॉइंट्स को स्किप कर देना, पर प्लीज आप इस चौथे पॉइंट को भूल के भी मिस मत करना, क्योंकि वही वो पॉइंट था जिसके कारण ये वीडियो बनाई गई है। तो खैर आपको ये तो पता होगा ही कि जेम्स गन मोस्टली थोड़े कम पॉपुलर सुपर हीरोज को चुनते हैं, या कहो कि थोड़े चूतिए किस्म के कैरेक्टर्स को चुनते हैं, ताकि उन्हें उनके ओरिजिन लिखने के लिए एक क्रिएटिव हेड स्टार्ट मिले। और ये जायज भी है, क्योंकि जेम्स गन नोज दैट टू राइट अ गुड कैरेक्टर यू फर्स्ट नीड अ गुड इंट्रोडक्शन। Instead of getting to write innately popular characters like Spider-Man or Captain America, he shifts his focus to form teams of unknown characters like Guardians of Galaxy, Justice Gang, Creature Commandos या फिर The Suicide Squad। और अगर आप इन टीम्स में नोटिस किया हो तो ये सारी टीम्स मजबूरन में बनाई गई है। जहाँ गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वो जेल से बाहर निकलने के लिए बनाई गई थी, तो सुसाइड स्क्वाड और क्रीचर कमांडोज लगभग सेम ही थे। और पीसमेकर की वो टास्क फोर्स एक्स की टीम ही क्यों ना हो। और जस्टिस गैंग भी शायद ऐसी कोई मजबूरी में बनाई गई होगी, क्योंकि गाय गार्डनर और मिस्टर टेरिफिक के बीच के टेंशन ही उस ग्रुप को एक पर्सनैलिटी देती है। जहाँ पर्सनैलिटी वाली चीज सिर्फ टीम्स या को उस ग्रुप तक सीमित नहीं है, इट फर्दर गेट्स डिवाइडेड टू इट्स मेंबर्स टू। Just for an example, every monster in Creature Commandos shows a personality throughout the show, while the origin stories are told through each episode. Peacemaker gets a movie where we find a funny asshole who we're happy to see get killed to get later an entire show that follows his emotional journey of becoming a superhero. Did you notice any pattern in this example except for the fact that they form a team in a jail? But ये कि जेम्स गन almost always introduces his personality and the feel of the character separately from his or her backstory. क्योंकि एक well-written character is not just about who is he, but also the fact that how he became that way. Now, if you had the feeling of King Shark was cute, strong, and dumb all at once, that Lex Luthor was an egoistic rage baiter who hates Superman, and that Vigilante is borderline insane, and James Gunn has clearly succeeded in his first impression, cause he builds the pillars and then writes the plot sticking around it. This also means that James Gunn does a perfect job establishing personality in short amount of time, even with the little dialogue involved. And on top of that, he makes people care about them. और क्या हो अगर उन्हें एक ऐसी टीम दिखानी हो where these characters have no intention of getting along with each other? तो here comes the point number 2 of contrast and resemblance. अब कभी जेम्स गन की मूवीज उठा के देख लेना, it feels like the characters are on a journey, and instead of teaming up with bland characters, James Gunn sets them up with characters that are either vastly different from each other or similar to each other. अब कॉन्ट्रास्ट का भी ले लो। दिस पेयरिंग क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियोलॉजीज, मोटिव्स एंड देयर बैक स्टोरीज व्हिच मेक्स देम रिलेटेबल। चाहे अब क्रीचर कमांडो से नीना और ब्राइड को ही ले लो, जहाँ नीना ने आज तक किसी को नहीं मारा होता है, पर ऑन द अदर साइड ब्राइड का सिर्फ यही काम था। Putting Nina and the bride together offers a contrast that makes the story interesting, as the opposing ideals define the plot in many cases. And now talking about the resemblance, take Peacemaker and Bloodsport, two people with almost identical capabilities that constantly disagree with each other.
दिस सीम्स अ बिट इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ इस रेजेंबलेंस की वजह से उनके बीच के टेंशन either goes in bondage or rupture. So this goes for the pairs like Vigilante and Peacemaker, Adebayo and Economos, Peter Quill and Rocket, or Frankenstein or Rick Flag Sr. क्योंकि ये contrast and resemblance is quite similar to Vibe Matrix और इसके ऊपर से जेम्सन का ह्यूमर fills the room up to every corner. बट सिर्फ कैरेक्टर्स का बढ़िया होना एक अच्छी कहानी नहीं बना सकती. A good story should have a purpose with them. आप सिर्फ जेम्स गन की मूवीज को देख लो. Every movie in his work serves a purpose, as he understands the characters, whether he's telling a good story or building towards something bigger, separating him from every other superhero director out there. अब चाहे सुपरमैन को ही ले लो, it brings us the classic Superman with his red chaddi, showcasing hope. या फिर Guardians of Galaxy को ही ले लो, where it was about family and the Suicide Squad was about trust. कि how well do we know each other, which brings me to Peacemaker and Creature Commandos, where they were about redemption and acceptance. और अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बोली थी कि जेम्स गन अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर्स विच इज द सीक्रेट वेपन, क्योंकि सुपर हीरो मूवीज कोई भी बना सकता है, पर मेकिंग दिस कैरेक्टर्स फील अटैच्ड इज अ बिग थिंग. उनकी मूवीज फ्रेश लगती है, आप चाहे कितनी बार भी देख लो, वो जोक्स, वो इमोशन, वो गुस्सा परफेक्टली लैंड होता है. अब आप पीसमेकर को ही देख लो, सुसाइड स्क्वाड में इंट्रोड्यूस हुआ बंदा जिसके मरने पर सब खुश हुए थे, आज वही उसी के लिए खड़े हैं. अब खैर छोड़ो एंड मूविंग टुवर्ड्स द मेन पार्ट. अभी तक आपको ये तो पता होगा ही कि जेम्स गन वर्क्स विद अनपॉपुलर कैरेक्टर्स जिनकी एक दूसरे से बनती नहीं है. और हाँ, हिज वर्क कंटेन्स एटलीस्ट वन क्रीचर एंड पेयर्स देम अप टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप एंड गिविंग देम अ पर्सनैलिटी व्हिच लेटर कैन बी यूज्ड अप फॉर फिलिंग अप द प्लॉट and serving a purpose throughout the journey. So अभी सारे चेक बॉक्सेस मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि I have personal wish that James Gunn should work for Section 8. अब मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत 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 बड़ा. अभी चाहे इन्हें द सुसाइड स्क्वाड की तरह लाइव एक्शन बनाए या फिर क्रीचर कमांडोज की तरह एनिमेटेड. और अगर आप इन्हें नहीं जानते, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सेक्शन 8 was created for the Boys Universe but ended up in the DC Universe. क्योंकि इस टीम के मेंबर्स इतने बकचोद, इतने चूती और इतने गए गुजरे हैं कि एक तो आप इन्हें पसंद करोगे या फिर इनसे नफरत करोगे. There's no such thing as middle line for this team. अब जो लोग इन्हें नहीं जानते उनके लिए बस एक क्विक इंट्रोडक्शन दिया जाए तो पहले क्लियर कर दूं कि किसी के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. These are just some drunk delusional humans with fancy names. क्योंकि ना किसी के पास कोई दिमाग है ना कोई सुपर पावर. Let me introduce you to Section 8 members like Six Pack, Bruno Exilante, Dog Wilder, Friendly Fire, Defenstrator, Flame Gem Guts और Jean the Battle. अभी नामों से तो पता चल ही रहा होगा कि ये कितने बकचोद किस्म के किरदार है. या अगर फिर भी ना समझ रहा हो तो allow me to introduce them. जहाँ बातों के बारे में कुछ स्पेशल नहीं है, just like us, बस वो होते हैं. तो क्यों ना स्टार्ट करें इस नाजायज टीम के लीडर के साथ, सिक्स पैक, जो बस एक ड्रंक डिल्यूजन सुपर हीरो है जो अपनी दारू की बोतल से लोगों को मारता है और उसके कनेक्शंस बहुत ऊपर तक है. सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, मार्शियल मैनहंटर और बहुत भी है. पर आगे बढ़े तो अगर आपको पीसमेकर में बाकी किरदारों के कंपैरिजन में विजिलेंटे थोड़ा अलग, थोड़ा संगी किस्म का लग रहा हो तो ब्यूनो एक्सिलेंटे इस सेक्शन 8 का विजिलेंटी है. जहाँ इसके कारनामे इतने वाहियात है कि ये विलन्स को मोलेस्ट करता है, जिसके लिए विलन्स या कोई भी इसे दूर ही रहना पसंद करता है. और इसका सही इस्तेमाल सेक्शन 8 ने लोगों को हराने में किया था, जहाँ एक परफेक्ट और डेडली चेस के बाद लोगों को बेहोश किया जाता है और ब्यूनो एक्सिलेंटे अपना कार्यक्रम करता है जो लोगों को ट्रॉमेटाइज कर देती है, जिसके कारण उसे ब्लैकमेल करने पे वो इन्हें छोड़ के चला जाता है. अब चलो, ये तो सिर्फ एक अच्छा काम था क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स ग्रीन लैंटर्न भी ब्यूनो को ऐसे ही जानता है. तो चच्चा से बहुत सारे लोग मिले और उनका कोई बाल तक बाका नहीं कर पाया. जहाँ आपको मैं एक ऐसे किरदार से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जिसकी कारनामे देखकर मार्शियल मैनहंटर खुद ट्रॉमेटाइज हो गया था. एक कैरेक्टर थोड़ा क्रीचर किस्म का है जो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन से बना एक सिम्बियोट है. अब इसके आकार से तो पता चल ही रहा होगा कि इसके और ब्यूनो एक्सिलेंटे का रिश्ता कैसा रहा होगा. जहाँ अगर ज्यादा डीप में ना जाते हुए आगे बढ़े तो फ्रेंडली फायर अकेला सा किरदार है जिसके पास कोई ढंग की पावर होती है टू शूट एनर्जी ब्लास्ट थ्रू हैंड्स, बट ये मेजरली अपनी टीम को चोट पहुंचाता है. एक बार तो इसने खुद को ही मार दिया था. तो नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ दिस टीम. ऐसे ये टीम इतनी ज्यादा बकचोद है कि ना विलन्स इनके बारे में सोचते हैं, ना हीरोज, ना गवर्नमेंट और ना ही इंसान. पर इन्होंने एक बहुत बड़ी सुसाइड स्क्वाड के स्टारफिश के 10 टाइम्स बड़ी थ्रेट से दुनिया को बचाया था. ट्रूली विश्ड
कि सुसाइड स्क्वाड में जेम्स गन ने टास्क फोर्स एक्स में इनमें से किसी किरदारों को चुना होता, क्योंकि अगर इन्हें मरवाना ही था तो फ्रेंडली फायर के दर्शन तो हो जाते। पर खैर यार छोड़ो, मौका हाथ से अभी तक गया नहीं है, तो आई स्टिल डिमांड अ सेक्शन 8 मूवी इन दिस न्यू फेस ऑफ डीसी यूनिवर्स। क्योंकि अब आप ही देख लो, नए डीसी को शुरू हुए बहुत साल हो चुके हैं और अब तक आपको कितने सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिले। अब सुसाइड स्क्वाड और क्रीचर कमांडोस को ही देख लो, एंड जस्ट टू पॉइंट आउट कि उनमें और इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस उनकी बैक स्टोरी है जो इन्हें रिलेटेबल बनाती है, और इनके लिए तो बस जेम्स गन काफी है। तो बस आज का वीडियो यही पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर जरा सी भी पसंद आई हो तो बाकी इनकी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसी क्यूरियोसिटी से किसी दूसरे टॉपिक के साथ।